ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। Reading from canto number 1, chapter number 4, entitled as The Appearance of Sri Narada, and the text number 1. व्यास उवाच इति ब्रुवाणं संस्तूय मुनीनां दीर्घसत्रिणां वृद्धः कुलपतिः सूतं बभृच्च शौनको ब्रवीत्। Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada ki Jai. Translation. Vyasadeva said, on hearing Sutta Goswami speak thus, Shaunaka Muni, who was the elderly, learned leader of all the rishis, engaged in that prolonged sacrificial ceremony, congratulated Sutta Goswami by addressing him as follows. Purport. In a meeting of learned men, when there are congratulations or addresses for the speaker, the qualification of the congratulator should be as follows. He must be the leader of the house and an elderly man. He must be vastly learned also. Shri Shaunaka Rishi had all these qualifications, and thus he stood up to congratulate Shri Sutta Goswami when he expressed his desire to present Srimad Bhagavatam exactly as he heard it from Shukadeva Goswami and also realized it personally. Personal realization does not mean that one should, out of vanity, attain to show one's own learning by trying to surpass the previous Acharya. He must have full confidence in previous Acharya, and at the same time he must realize the subject matter so nicely that he can present the matter for the particular circumstances in a suitable manner. The original purpose of the text must be maintained. No obscure meaning should be screwed out of it. Yet, it should be presented in an interesting manner for the understanding of the audience. This is called realization. The leader of the assembly, Shaunaka, could estimate the value of the speaker, Sri Sutta Goswami, simply by his uttering yathadhitam and yathamati. And therefore, he was very glad to congratulate him in ecstasy. No learned man should be willing to hear a person who does not represent the original Acharya. So the speaker and the audience were bona fide in this meeting where Bhagavatam was being recited for the second time. That should be the standard of recitation of Bhagavatam, so that real purpose can be served without difficulty. Unless the situation is created, Bhagavatam recitation for extraneous purpose is useless labor for the speaker and for the audience. Hare Krishna. तो आप सभी का बहुत स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम कक्षा में। आज हम श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के चौथे अध्याय का पहला श्लोक देखने वाले हैं। तो ये श्लोक विशेषता जब हमारे घर पे गेस्ट, अतिथि या फिर कोई बड़े व्यक्ति आते हैं तो उनके घर में रिसेप्शन, उनका आदरातिथ्य कैसे करना चाहिए, इसके बारे में हमें बताता है। विशेषता सर्वप्रथम एक चीज हमें याद रखनी चाहिए। श्रीमद् भागवतम जो है, श्रीमद् भागवतम कन्वर्सेशंस बिटवीन द कन्वर्सेशन, संभाषणों के बीच में संभाषण है, उसके बीच में फिर से संभाषण, उसके बीच में फिर से संभाषण। तो ऐसे संभाषणों का पूरा मायाजाल नहीं बोल सकते, केवल जाल जो है वो श्रीमद् भागवतम में है। जैसे अभी हमें श्रीमद् भागवतम कौन बता रहा है? व्यासदेव बता रहे हैं। श्रीमद् भागवतम फिलहाल व्यासदेव बता रहे हैं। व्यासदेव किसका संभाषण हमें बता रहे हैं? सुत गोस्वामी और शौनका ऋषि। परंतु सुत गोस्वामी किसका संभाषण बता रहे हैं? शुकदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज।
और उसमें शुकदेव गोस्वामी अलग अलग संभाषण बताते हैं, जैसे कभी विदुर मैत्रेय का संभाषण बताएंगे, कभी वो भगवान और माया देवी का संभाषण बताएंगे। तो ऐसे संभाषणों के अंदर संभाषण जो है वो इसका जाल पूरा इस श्रीमद् भागवतम है। विशेषता हमारे जितने भी सारे पुराण वेद ग्रंथ है, ये विशेषता संभाषणों के रूप में लिखे गए हैं कि कोई तो एक भक्त है जो अपने गुरु या अपने गाइड को प्रश्न पूछता है और वो गुरु या वो वक्ता जो है वो इसका उत्तर देते हैं। इस पद्धति से जो हमारे वेद पुराण और श्रीमद् भागवतम भगवद गीता, अब देखिए ये सारे के सारे ग्रंथ जो है वो इसी पद्धति से इनकी रचना की गई है कि वो प्रश्न और उत्तर के स्वरूप में आता है। विशेषता ये श्लोका में हमारे घर में आए हुए कोई भी विशेष अतिथि का आदरातिथ्य कैसे करना चाहिए, हाउ टू रिस्पेक्ट and how to welcome, how to receive guests into our home, that is specifically mentioned in this particular verse. So criteria जो श्रील प्रभुपाद यहाँ पे देते हैं कि कौन से व्यक्ति ने रिसीव करना चाहिए, रिसेप्शन करना चाहिए या उस व्यक्ति की स्तुति करनी चाहिए जो आपके घर में आए हुए हैं, उसके लिए जो क्वालिफिकेशन जो पात्रता दी है वो है सर्वप्रथम वो लीडर ऑफ हाउस होने चाहिए, वो घर के मुखिया होने चाहिए। ठीक है, हमारे यहाँ पे अतिथि आता है, ठीक है, और राधिका को बोलते हैं या फिर नितेश को बोलते हैं या फिर हम वेदांत को बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम श्रीमद देवकी नंदन प्रभु आए थे, तो उनका जो वेलकमिंग, उनका जो इंट्रोडक्शन था वो श्रीमद सुंदर चैतन्य प्रभु किया, क्योंकि यहाँ के वो वरिष्ठ है इसलिए। तो वैसे ही अगर ऐसे समय पे हम बोलेंगे कि चलो नितेश, चलो वेदांत, आप इंट्रोडक्शन दो करके, तो वो सही नहीं लगता। तो वैसे ही जो भी कोई रिसीव कर रहा है, रिसेप्शन में है, वो व्यक्ति घर का मुखिया होना चाहिए और वो बड़ा होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा उसका पात्रता क्या है, वो लर्नेड होना चाहिए, उसको साक्षात्कार, विजडम, इंटेलिजेंस, बुद्धिमान होना चाहिए कि किस पद्धति से किस व्यक्ति का कैसा रिसेप्शन करना चाहिए, किस पद्धति से उस व्यक्ति का आदरातिथ्य करना चाहिए जो वो हमारे घर में आते हैं। घर में आने से पहले वेलकमिंग कैसे होना चाहिए, घर में आने के बाद वेलकमिंग कैसे होना चाहिए, ये सारी जो श्रेणियां है उसका ज्ञान उस व्यक्ति को होना चाहिए, तब जाके उसको परफेक्ट गेस्ट वेलकमिंग हम बोल सकते हैं। तो इसीलिए जब सारे ऋषि मुनिगण नैमिषारण्य में एकत्रित हुए और वो बहुत सारे यज्ञ अनुष्ठान करने के बाद भी वो बोले कि सारे धुएं से हमारा चेहरा काला हो गया, लेकिन हमें जो चाहिए वो हमें मिला नहीं। तो आप सुत गोस्वामी, क्योंकि आपने श्रील शुकदेव गोस्वामी के समक्ष बैठ के उनके मुखारविंद से श्रीमद् भागवतम का श्रवण किया हुआ है, तो कृपया आप हमें श्रीमद् भागवतम का पाठ करवाइए, तो श्रीमद् भागवतम आप हमें बताइए। तो शौनक ऋषि का जो क्वालिफिकेशन है, पात्रता, ये दोनों भी थे, वो पढ़े लिखे हैं, शास्त्र उन्होंने अध्ययन किए हुए हैं और उन सभी में वो वरिष्ठ थे। तो सुत गोस्वामी के केवल 2 शब्दों से उनको बहुत अच्छा लगा कि यस, सुत गोस्वामी है जो हमें श्रीमद् भागवतम बताने के लिए एक परफेक्ट व्यक्ति है। तो वो 2 शब्द है, यथाधीतम यथामति। हमने जो आखिरी श्लोका देखा था तीसरे अध्याय का, उसमें ये 2 शब्द आते हैं। यथाधीतम मतलब क्या, जैसे मैंने सुना है, और यथामति मतलब वो सुनने के बाद मुझे उसमें से जो साक्षात्कार हुआ है, जो मैं समझ पाया हूँ, वो मैं आपके लिए वापस बताऊंगा। ठीक है, तो श्रील प्रभुपाद यही थीम को लेते हैं और हमें बताते हैं कि किस पद्धति से श्रीमद् भागवतम बताना चाहिए। पहले वर्ष में, आखिरी वर्ष जो 1.3.44 वर्ष था, उसमें श्रील प्रभुपाद ने हमें बताया कैसे सुनना चाहिए श्रीमद् भागवतम विद रैप्ट अटेंशन। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं रैप्ट अटेंशन के साथ सुनिए। किसका रैप्ट अटेंशन हो सकता है? जिसका मन प्योर होता है, शुद्ध मन जो होता है वो शुद्ध होता है। कौन से व्यक्ति का मन शुद्ध होगा? जिसके एक्शंस, क्रियाएं
कार्य शुद्ध होंगे। और कौन से व्यक्ति के दैनंदिन कार्य शुद्ध हो सकते हैं? जिसका आचरण, विशेषता आहार, निद्रा और भय और मैथुन ये सत्वगुणी हो और वो उसमें शुद्ध आचरण करता हो, उसी व्यक्ति का मन शुद्ध हो सकता है और वही श्रीमद् भागवतम को बहुत अच्छे से सुन सकता है। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि वो हो गया, श्रवणम कैसे होना चाहिए। अभी आप रिसाइटेशन करने वाले, आप उसको लोगों को बताने वाले हो, तो जो बताने वाला है, जो वक्ता है, उसका पात्रता क्या होना चाहिए, उसने कौन से चीजों के इसमें कौन से चीजों में सावधानी रखनी चाहिए, उसके बारे में श्रील प्रभुपाद हमें यहाँ पे बताते हैं। क्या बताते हैं श्रील प्रभुपाद? Personal realization does not mean that one should out of vanity attempt to show one's own learning by trying to surpass the previous archers। कि देखो मैं इतना साक्षात्कारी पुरुष हूँ ना, कि मैं इतना अच्छे से भागवतम बताता हूँ कि मैंने ये साइड से ये ऐसा सोच के रीडिंग इन बिटवीन द लाइंस किया और उसकी वजह से मुझे ये साक्षात्कार हुआ कि भगवान ऐसा क्यों बोल रहे हैं, भगवान ऐसे शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, इनका चयन क्यों किया गया। और फिर देखिए ये सामने आया है, कितना अनमोल रत्न सारे ग्रंथों से बाहर आया है, परंतु आप जिस निष्कर्ष के ऊपर आए हैं वो निष्कर्ष आचार्यों ने दिए हुई जितनी भी हमें ज्ञान है और आचार्य ने दिए हुई जो शिक्षा है उससे सुसंगत नहीं है। तो क्या हो गया? वो मेंटल स्पेकुलेशन हो गया, वो आपकी मनगढ़ंत कहानी हो गई। ठीक है, तो वो चीज हमने कभी भी करनी नहीं चाहिए जब ये चीज पर्सनल रियलाइजेशन के ऊपर आती है। तो श्रील प्रभुपाद इसीलिए रियलाइजेशन का डेफिनेशन भी देते, जो हम कल भी उसकी व्याख्या किए थे कि रियलाइजेशन मतलब क्या। रियलाइजेशन मतलब सबसे पहले कि जो कोई भी वाक्य या शिक्षा दी गई है उसका कोई भी अल्टीरियर मतलब ना निकालते हुए, उसका कोई अन्य मतलब ना निकालते हुए, जो सामने श्रोतागण है उनके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, उनके समझ के हिसाब से उसको इंटरेस्टिंग बनाते हुए, मनोरंजक बनाते हुए जब जो वक्ता है इस शिक्षा को लोगों के सामने रखता है तो उसे रियलाइजेशन बोला जाता है। No obscure meaning should be screwed out of it, but it should be delivered in interesting manner for the understanding of audience, that is called as realization। उसे साक्षात्कार बोला जाता है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद ने रियलाइजेशन क्या नहीं होने चाहिए इसके बारे में भी बताया है, और रियलाइजेशन क्या होने चाहिए इसके बारे में भी इस तात्पर्य में बताया है। आगे प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं? He must have full confidence in previous आचार्य, कि मेरे आचार्य ने जो लिखा है, मुझे जो दिया है वो 100% दिया हुआ है। ये जब आपका कॉन्फिडेंस, आपकी निष्ठा आपके आचार्य के ऊपर आती है तब आपको उसका साक्षात्कार भी होता है और आपके हाथों से प्रचार और प्रसार भी होता है। श्रील प्रभुपाद जब इलाहाबाद में थे तो उनके घर में जो पहली मंजिल थी वो उन्होंने अपने जितने भी गुरु बंधु है उनके लिए खुला किया था कि वहां पे आके वो श्रीमद् भागवत और चैतन्य चरितामृत के बारे में चर्चा कर सके। तो एक बार उनके गुरु बंधु सब ऊपर चर्चा कर रहे थे, श्रील प्रभुपाद की मालाएं बाकी थी, तो जो स्टेयरकेस है, सीढ़ियां, उसके ऊपर बैठ के श्रील प्रभुपाद अपने जप कर रहे थे। जो चर्चा चल रही थी वो चर्चा थी कि श्री चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, पृथ्वी ते आचे जन नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार भैवे मोरणा। संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर जितने भी नगर और ग्राम है उसमें मेरा संपूर्ण नाम का प्रचार होने वाला है। और इन गुरु बंधुओं का चर्चा चल रहा था कि ऐसा कौन करने वाला है। तो उसमें से कुछ गुरु बंधु बोल रहे थे कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने पृथ्वी मतलब केवल भारत के बारे में बोला है और भारत में तो प्रचार प्रसार चल ही रहा है। तो उनका चर्चा होने के बाद जब ये सारे गुरु बंधु नीचे आ रहे थे, श्रील प्रभुपाद को जाते जाते उन्होंने पूछा कि चैतन्य महाप्रभु ने इस तरीके से बताया है कि संपूर्ण पृथ्वी पे मेरा नाम का प्रचार होगा, आपका इसमें क्या मत है। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं पृथ्वी, तो इसका मतलब वो पूरे पृथ्वी पे होने वाला है।
तो उनके गुरु बंधु बोलते हैं परंतु करेगा कौन, कौन करने वाला है इसे? तो श्रील प्रभुपाद बहुत ह्यूमिलिटी, नम्रता के साथ बोलते हैं, एनी फूल डिसाइपल ऑफ श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती श्रील प्रभुपाद कैन डू इट। फिर उसके बाद थोड़ी देर रुक के श्रील प्रभुपाद बोलते हैं बट उसमें से आप कोई नहीं, none of you are that person। तो इसका मतलब अगर अपने गुरु बंधु को तो श्रील प्रभुपाद कभी बोलने वाले नहीं है कि आप मूर्ख डिसाइपल है करके, ठीक है, ऐसा तो नहीं बोलेंगे। प्रभुपाद नम्र है, अपने गुरु बंधु से बहुत प्रेम करते थे, आदर रखते थे। तो अगर किसी भी अपने गुरु के शिष्य में हम किसी को मूर्ख बोलते हैं तो वो कौन रहता है? हम खुद। तो श्रील प्रभुपाद भगवान के शुद्ध भक्त थे, उनको ओरिजिनली पहले से ही पता था कि ये कार्य उनको करना है। तो श्रील प्रभुपाद ने फिर 1965 के बाद वो किया, पृथ्वी के आश्चर्य नगरादिग्राम सर्वत्र प्रचार हुए मोरना। Any fool disciple of Bhakti Siddhanta Saraswati Srila Prabhupada can do it, but none of you are that disciple। So इस तरह श्रील प्रभुपाद ने पहले से ही बता के रखा था कि मैं पूरे जगत में हरिनाम का प्रचार और प्रसार करूंगा। क्यों ये पॉसिबल हुआ? एक बार भक्ति हृदय बंद स्वामी महाराज से उनके एक शिष्य ने प्रश्न पूछा कि श्रील प्रभुपाद जो है, इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, इतने सारे भक्तगण गए थे परंतु किसी को सक्सेस आया नहीं, किसी को यश प्राप्ति नहीं, केवल इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद को ही क्यों सक्सेस मिला या यश प्राप्ति हुई? तो भक्ति हृदय बंद स्वामी महाराज बोलते हैं क्योंकि उनके अपने आचार्य, विशेषतः अपने गुरु महाराज के ऊपर श्रील प्रभुपाद की निष्ठा थी और केवल उस निष्ठा की वजह से श्रील प्रभुपाद सक्सेसफुल, यशस्वी हुए। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि one's own learning he must have full confidence in the previous acharya, and the same time he must realize the subject matter so nice that he can present the matter for a particular circumstances in a suitable manner। मैंने सब कुछ पढ़ लिया परंतु जाना कुछ नहीं है, अंदर मैंने कुछ उसको एब्जॉर्ब नहीं किया, इम्बाइब नहीं किया है, तो साक्षात्कार कैसे आएगा? उसके बारे में आप जान कैसे पाओगे? आपके हृदय में उसको कैसे ले पाओगे? जब वो हृदय में नहीं आएगा तो सामने वाले को बता कैसे पाओगे? आज तक इतने भागवत रिसाइटर हो चुके हैं, प्रोफेशनल भागवत रिसाइटर, परंतु इतना भागवत रिसाइट करने के बाद भी लोगों के हृदय का परिवर्तन कर नहीं पाए। वो हृदय का परिवर्तन केवल वही व्यक्ति कर सकता है जिसके हृदय में वो भगवान की भक्ति पनपती है, जो अपने हृदय से लोगों को मदद करने के लिए, लोगों के कल्याण के लिए श्रीमद् भागवतम का जो पाठ करता है, अध्ययन करता है या पठनम करता है या उसको बोलता है, उसी व्यक्ति के मुखारविंद से अगर कोई श्रीमद् भागवतम सुनता है तो ही हृदय में परिवर्तन आएगा, अन्यथा कोई आशा नहीं। फिर उसके बाद आगे श्रील प्रभुपाद यहाँ पे बोल रहे हैं, नो लर्नेड मैन शुड हैव विलिंग टू हियर अ पर्सन हु डज नॉट रिप्रेजेंट ओरिजिनल आचार्य। स्पेकुलेशन वाला अगर कोई व्यक्ति रहेगा तो उसके मुखारविंद से क्या, उसके मुख से, मुखारविंद नहीं बोलेंगे, मुख से क्या ही सुनेगा व्यक्ति, उसका क्या ही फायदा है करके। तो इसीलिए श्रीमद् भागवतम हमें जो सुनना है वो हमेशा ऑथोराइज्ड व्यक्ति से सुनना चाहिए। तो ये श्लोका के परपट के तात्पर्य के अंदर श्रील प्रभुपाद दो विशेष चीजों के ऊपर ध्यान देते हैं। पहला, गेस्ट रिसेप्शन, अतिथि को कैसे सम्मान करना चाहिए, और दूसरा, सुनते समय, बोलते समय कौन से चीजों का हमें ध्यान रखना है। जब हम श्रीमद् भागवतम अगर बोल रहे तो उस समय किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। जब भी कोई व्यक्ति भागवतम बोलने के लिए बैठता है उस आसन को बोला जाता है व्यासासन। व्यासासन मतलब जो व्यक्ति उस आसन के ऊपर बैठा हुआ है वो व्यासदेव जी का रिप्रेजेंटेटिव है।
वो व्यासदेव का प्रतीकात्मक व्यक्ति है। उसने जो व्यासदेव ने आज तक बोला है वेदों में, पुराणों में, श्रीमद् भागवतम में, उन्हीं चीजों को, उन्हीं शिक्षाओं को यथारूप पद्धति से वापस बोलना चाहिए। अपनी खुद की मनगढ़ंत मेंटल स्पेकुलेशंस को उसने नहीं लाना चाहिए। और एक विशेष बात है अतिथि के सम्मान के बारे में। भागवतम में ऐसी बहुत सारी घटनाएं आती है जहाँ पे अतिथि का सम्मान एक तो अच्छे से नहीं हुआ है, या फिर करने के बाद भी उस अतिथि को ये नहीं लगा कि मेरा सम्मान उचित तरीके से हुआ है, तो उसके वजह से बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हुई। कोई बता सकता है कौन कौन से ऐसी घटनाएं हैं? हाँ, विदुर का सम्मान नहीं हो पाया दुर्योधन से, ठीक है, परंतु विदुर जी अतिथि नहीं थे, तो अतिथि का हम कृष्ण परीक्षित महाराज का भी सम्मान, अम्बरीश महाराज के केस में हुआ था। अम्बरीश महाराज ने अपना पूर्ण तरीके से 100% दिया था कि दुर्वासा मुनि का वो आदरातिथ्य करे, परंतु दुर्वासा मुनि के हिसाब से वो आदरातिथ्य बराबर नहीं हुआ था, तो उससे समस्या हुई, परंतु वो दुर्वासा मुनि को हुई, अम्बरीश महाराज को नहीं। परीक्षित महाराज का आदरातिथ्य नहीं हुआ था, परंतु उसकी वजह से परीक्षित महाराज असमाधानी हुए और उन्होंने जब शम्यक ऋषि के कंधे के ऊपर सांप रख दिया तो उनका बेटा श्रृंगी ने परीक्षित महाराज को शाप दे दिया। उसके बाद लॉर्ड कृष्णा वेंट फॉर पीस टॉक। हाँ, लॉर्ड कृष्णा वेंट फॉर पीस टॉक, और उनको क्या हुआ, वो दुर्योधन ने जकड़ने की कोशिश करके जेल में डालने का प्रयत्न किया, तो उसकी वजह से कृष्ण ने विश्वरूप दिखाया गुस्से में आके। और नारद मुनि एंड नलगिरी मणिगिरी, हाँ, नारद मुनि नल कुबेर मणिगिरी, नारद मुनि वहां से जा रहे थे, फिर भी अपने इंद्र दुत्ते में नल कुबेर और मणिगिरी दोनों रथ थे, तो शाप मिल गया, परंतु भक्त से मिला हुआ शाप भी आशीर्वाद ही रहता है, जो मणिगिरी और नल कुबेर के केस में हमें दिखाई दिया, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे और कोई चतुष्कुमार उनका वेलकमिंग जय विजय ने अच्छा तरीके से नहीं किया, तो उसमें प्रॉब्लम आ गया। और कहाँ पे अमरीश महाराज के तो हुआ एग्जाम्पल हो गया। और भृगु ऋषि 3 अलग अलग पद्धति से भृगु ऋषि का वेलकमिंग उनके हिसाब से नहीं हुआ, तो तीनों जगह पे उन्होंने समस्या करने के उत्पन्न करने का प्रयत्न किया, एक्चुअली वो उनके ऊपर हुआ, समस्या आई उनको। और तीसरा, नारायण ने कुछ किया परंतु लक्ष्मी माता ने शाप दे दिया कि आपके साथ में कभी जिंदगी भर रहूंगी नहीं, इसलिए ब्राह्मणों के पास पैसा नहीं रहता। हरे कृष्ण। जैसे बहुत सारे उदाहरण है जहाँ पे किसी व्यक्ति का आदरातिथ्य नहीं हुआ। बृहस्पति, हाँ ये सती देवी का आदरातिथ्य नहीं हुआ, उनके पति का आदरातिथ्य नहीं हुआ, तो उन्होंने अपने आप को आत्मदहन कर लिया, और उसके बाद भगवान शिव जो है उन्होंने अपने काल भैरव रूप में आके दक्ष प्रजापति को मार दिया। बृहस्पति का नहीं हुआ, इंद्र ने अच्छे तरीके से वेलकमिंग नहीं किया, तो इंद्र को अपना पद गंवाना पड़ा। तो ऐसे दुर्वासा मुनि का भी है इंद्र के केस में, दुर्वासा मुनि ने हार दिया, पुष्पहार दिया, परंतु इंद्र ने वो हाथी को दिया, हाथी ने उसको कचुम्बर बना दिया, उसके वजह से भी दुर्वासा मुनि बहुत ये हो। अभी पॉजिटिव आदरातिथ्य होता है उधर, ये तो सारे नेगेटिव एग्जांपल हो गए, पॉजिटिव कृष्ण एंड सुदामा, कृष्ण और सुदामा। कृष्ण ने सुदामा का जो आदरातिथ्य किया कि एक साधारण सा ब्राह्मण होने के बाद कि जिनके पास कुछ भी नहीं, भगवान ने उनको गेट पे आके अपना मित्र समझ के उनको लाया, फिर उनके पैर धोए, उनको अच्छे वस्त्र दिए, इस पद्धति से भगवान ने आदरातिथ्य कैसे करना चाहिए वो दिखाया करके। जब इंद्रप्रस्थ का वास्तु शांति था, इनॉग्रेशन था,
उस समय भी भगवान ने सारे अतिथियों का पैर धोने का सेवा दिया। वो कृष्ण का ह्यूमिलिटी है, नम्रता है करके। श्रीमती राधा रानी ने भी दुर्वासा मुनि का इतना सुंदर से स्वागत किया और आदर आतिथ्य किया कि दुर्वासा मुनि ने श्रीमती राधा रानी को आशीर्वाद दिया कि आपके हाथ का व्यंजन जो कोई भी व्यक्ति खाएगा उसको यश प्राप्ति हमेशा मिलेगी और उसका कभी भी जीवन जो है वो लंबा हो जाएगा, उसको अधिक जीवन मिलेगा। ठीक है। और कुंती महारानी ने भी दुर्वासा मुनि का आदर आतिथ्य बहुत अच्छे से किया था कि जिसकी वजह से उनको आशीर्वाद मिला कि आप किसी भी देवी देवता को स्वर्ग से बुला सकते हैं और उनसे फल प्राप्ति कर सकते हैं। और बहुलाश्व और राम और शबरी, वेरी नाइस। राम और शबरी, शबरी माता ने केवल एक दिन की तैयारी नहीं की थी, वो हजारों सालों तक तैयारी कर रही थी कि आज तो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। 60,000 ईयर्स तक शी इज वेटिंग कि भगवान आएंगे। और एवरी डे सफाई करना, फूल लगाना, उसका डेकोरेशन करना, बेर रखना भगवान के लिए, एवरी डे विदाउट फेल। शबरी माता से हम लोगों ने पेशेंस एंड एंथुसियाज्म एंड निश्चय, उत्साह, निश्चय, धैर्य अगर किसी से सीखना है तो वो शबरी माता का उदाहरण है। तो उनसे हम सीख सकते हैं कि हमारे जीवन में हम कैसे उत्साह में, निश्चय में और धैर्य में रहने चाहिए। ठीक है। बहुलाश्व और शुद्धदेव, मिथिला में ये जो बहुलाश्व मिथिला के राजा थे, शुद्धदेव एक साधारण से ब्राह्मण थे, लेकिन जब कृष्ण व्यासदेव, शुकदेव गोस्वामी, सीता देवला पर्वत मुनि के साथ मिथिला में मिलने के लिए आए थे तो उनका यथोचित आदर आतिथ्य अपने अपने कैपेसिटी के हिसाब से इन लोगों ने किया। तो भगवान ने उनको बोला कि ये शरीर छोड़ने के बाद आप सभी के सभी भगवत धाम मेरे पास वापस आओगे। लॉर्ड राम डन अंतिम क्रिया पर जटायु। हाँ, जटायु अतिथि, अतिथि। और राजा गुहा ने किया रामचंद्र का। वो केवट ने भी भगवान का इतना सुंदर तरीके से आदर किया था। तो ये सभी भक्त जो है इन्होंने दिखाया कि भगवान हो या भक्त हो, इनका आदर कैसे करना चाहिए। जो आपके घर में अतिथि आते थे, इसका सम्मान, उनका सम्मान कैसे करना चाहिए। राम सेतु, राम सेतु जो है स्क्विरल, उनका छोटा सा, वो रेसिप्रोकेशन में आएगा भगवान का रेसिप्रोकेशन। जैसे कि घर पे आपका कोई व्यक्ति आता है, एक जरासंध वेलकम कृष्ण। जरासंध को पता था कि कृष्ण, भीम और अर्जुन आए हुए हैं, परंतु वो ब्राह्मण के स्वरूप में आए थे। फिर भी जरासंध को ये पता चला तो उसने कुछ बोला नहीं, उसने यथोचित गौरव किया कृष्ण, भीम और अर्जुन का। ऐसे बोलते कि दिन में भीम और जरासंध इस तरीके से लड़ते थे कि एक दूसरे को मार ही देंगे, और रात को एक साथ खाना खा के आराम से बैठ के बातें करते थे कि ऐसे दोनों दोस्त। इसको बोलते हैं आदरातिथ्य। इस तरीके से आदरातिथ्य होना चाहिए कि दुश्मन आपके घर पे आए तो दुश्मन को पता भी ना चले कि आप उनको दुश्मन मानते हैं। इस पद्धति से हमेशा हमें आदरातिथ्य करना चाहिए। और श्रील प्रभुपाद जो परीक्षित महाराज, कौन सा चैप्टर आता है, कर्सिंग प्रहलाद, परीक्षित महाराज गेट्स कर्स्ड, which number of chapter is that? I think 13, महाराज 18th chapter, महाराज परीक्षित कर्स्ड बाय ब्राह्मण वर्ग। उसमें श्रील प्रभुपाद एक तात्पर्य में लिखते हैं, जब शम्य के ऋषि परीक्षित महाराज को वेलकम नहीं करते हैं, उस समय प्रॉपर ये क्राइटेरिया लिखते कि आपका अतिथि, अगर आपका दुश्मन भी अतिथि के स्वरूप में अगर आता है तो भी उसका ऐसा वेलकमिंग होना चाहिए कि उसको एक क्षण के लिए भी ना लगे कि आपके और उनके बीच में दुश्मनी। वामन होता है, वामन देव का आदरातिथ्य बलि महाराज ने किया हुआ था। ऐसा आदरातिथ्य किया तो जो कमाया वो सब कुछ गवा दिया लेकिन भगवान कमाया, उन्होंने भगवान की भक्ति कमाई और वो महाजन बन गए। Bhishma received Draupadi. She is asking who that all goes. She is asking. He should not. Right. So, from whom he asked? Bhishma. Bhishma.
Arjuna went to Bhishma. No, Draupadi goes to Bhishma. Draupadi. Like, Draupadi. she is asking, and I Bhishma heard of Arjuna. gives all the 5 instructions. goals. Yeah, we discussed Kunti. Guha, Nishadraj Guha, that also we discussed. That उन्होंने इवन भरत महाराज का भी आदरातिथ्य किया, भगवान रामचंद्र का भी आदरातिथ्य किया, लक्ष्मण के प्रति उनको थोड़ा सा ये था, डाउट था, लेकिन जब वो डाउट बाद में क्लियर हुआ तो लक्ष्मण को भी बहुत अच्छे से सम्मान किया। सुग्रीव नहीं कर पाए थे लक्ष्मण जी का आदर, तो भगवान ने उनको बाली से पिटवाया था। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे हम अल्पविराम लेते हैं, फिर से मिलेंगे हम कल इसी समय इसी वक्त इसी तरह। तब तक के लिए हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरे कृष्ण।